Okay, what we have done till now is we have completed the contraceptive methods, we have completed MTP. Now the next thing in reproductive health comes the sexually transmitted diseases. Okay, so sexually transmitted diseases also called as STDs, right? So these diseases, they are present in our सराउंडिंग्स सिंस लॉन्ग. ये नई कोई डिजीज नहीं है, ये बहुत पुरानी डिजीज है जो पहले से ही हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है. बट द थिंग इज इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और सेक्सुअल एक्ट. ओके, तो इसलिए इनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसके अलावा इनको और क्या बोला जाता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेनरियल डिजीजेस, or they are also called as, since reproductive tract is involved, they are also called as reproductive tract diseases. They are also called as reproductive tract diseases, RTI, or reproductive tract infections. Okay, diseases, or you can say reproductive tract infections, RTIs. ओके, सो आज जो टॉपिक डिटेल में करने वाले हैं वो क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ऑल्सो कॉल्ड एज वेनरियल डिजीजेस, VDs. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज VDs. नेक्स्ट थिंग इज, इन डिजीजेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट इज ड्यू टू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द हेल्दी पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर इन्फेक्शन है इन causative agents का, causative agents can be bacteria, it can be virus, it can be fungus, anything. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिजीजेस को कॉज कर रहा है, अगर कोई पर्सन उससे इन्फेक्टेड है एंड ही गेट्स इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी अदर हेल्दी पर्सन, तो उसको भी ये डिजीजेस हो सकती है. सो दिस मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ओके, अब इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? The causative agents are, the first thing, it can be due to bacteria, bacteria से हो सकती है. It can be due to viruses. It can be due to chlamydia. Okay, it can be due to chlamydia. It can also be due to protozoa. It can also be due to nematodes, fungi, or even ectoparasites. So these are the causative agents of sexually transmitted disease. So sexually transmitted disease can be due to bacteria, it can be due to viruses, can be due to chlamydia, it can be due to protozoa, nematodes, ectoparasite, and fungi. Okay, so it can be due to several reasons. Next thing is, what is the mode of transmission? The mode of transmission can be several methods. First thing is, it can be due to sexual contact. It can be due to sexual intercourse with the infected person. Other reasons can be, it can also be due to sharing of needles. Needles जैसे इंजेक्शन की needle. For example, अगर कभी हॉस्पिटल में ऐसा हो जाए कि किसी को इंजेक्ट किया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दी, और वो ही जो है इंजेक्शन किसी और के लिए यूज कर दिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो ही बिना स्टेरिलाइज के किसी और के लिए यूज कर दिया, राइट? सो देयरफॉर दैट इज ऑल्सो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स. सो देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड कि हॉस्पिटल्स में हमेशा नीडल्स जो है वो डिस्पोजेबल हो, वन टाइम यूज. ओके, इट कैन बी ड्यू टू सर्जिकल instruments, etc. What can be the other way? The other way can be also transfusion. Transfusion अगर ब्लड का कर दिया जाए गलती से, फॉर एग्जाम्पल HIV कोई पेशेंट है, उसका गलती से ब्लड पता नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, और गलती से उसका ब्लड किसी और में ट्रांसमिट कर दिया है, ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो भी क्या हो जाएगा? ये डिजीजेस हो जाएंगी. सो इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू transfusion of blood from infected person to the healthy person. It can also be due to from, or it can also be transmitted from infected mother to fetus.
इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी ट्रांसमिट हो सकता है. Okay, so these are the mode of transmissions for sexually transmitted disease. Next is cure. What are the cure for STDs? See, except HIV, hepatitis B, genital herpes, all the other sexually transmitted diseases are curable. लेकिन वो कब क्योरेबल है? अगर उसको सही टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए. तो HIV इन्फेक्शन, HIV भी डिटेक्टेबल है, लेकिन अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में उसको अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस के अलावा सारी की सारी STDs जो है वो कंप्लीटली क्योरेबल है इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली एंड दे आर ट्रीटेड प्रॉपरली. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स फॉर दीज डिजीजेस? सी, हर एक डिजीज में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होता है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एसटीडीज के. नाउ सम ऑफ दीज सिम्टम्स इज, फर्स्ट इज itching, second is fluid discharge, third is swelling, and next is pain. Okay, so itching, fluid discharge, swelling and pain are some of the common reasons for these diseases. What happens if the delayed treatment is there? For example, अगर डिटेक्ट ही नहीं हुआ या किसी को पता ही नहीं चला कि डिजीज है और उसके ट्रीटमेंट में बहुत डिले हो गया, तो उन केसेस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी कि वहां पे पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाए. ओके, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, स्टिल बर्थ हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया. इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर, इट कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर डिले ट्रीटमेंट किया जाए. सो डिले ट्रीटमेंट के लिए कॉन्सिक्वेंसेस आर, फर्स्ट इज pelvic inflammation diseases, second is abortions, next is stillbirths, next can be ectopic pregnancy, okay, next consequence can be infertility, and it can even lead to cancer. Okay, so these are some of the consequences of delayed treatment. Next, what are the efforts the government is taking to prevent such diseases? See, government is taking several efforts. One of the major effort it is taking is awareness. We have to create awareness about the diseases to the public. तो यहाँ पे सबसे मेजर फैक्टर आता है हमारी सोसाइटी के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, इन इंसिडेंसेस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इनके जो मिथ्स हैं उनको उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि HIV नॉर्मल टच से नहीं स्प्रेड होता है. ओके, तो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होने चाहिए. हमारी गवर्नमेंट और क्या कर सकते हैं? इनका मेडिकल डायग्नोसिस के लिए किट्स अवेलेबल होनी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए, राइट? सो फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल. तो ये सारे एफर्ट्स है जो गवर्नमेंट ले रही है. नेक्स्ट थिंग इज हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? प्रिवेंशन कैन बी बाय अवॉइडिंग द सेक्स विद द अननोन पार्टनर. अननोन पार्टनर के साथ कोइटस अवॉइड करने से प्रिवेंशन हो सकता है. सेकेंड थिंग इज if the contraceptive measures like condoms are used during the sexual act. Next thing is कि अगर किसी डाउट में है so immediately the person should consult, ताकि अगर disease by chance हो तो उसका early treatment start हो सके. Okay, so these are the preventive measures. Next thing is what are different types of these STDs. So we'll study different types of STDs. First, we'll study the STDs caused by bacteria. So first is STDs caused by bacteria. So first STD which is caused by bacteria is syphilis. Okay, syphilis, the causative agent is Treponema
pallidum. It is caused by Treponema pallidum. Now, what are the symptoms of these diseases is, one of the symptoms is like in the first stage, when the infections are spreading, what happens is ulcers are formed. Okay, in the genital regions, ulcers are formed, and these are painless ulcers. Okay, and it even leads to swelling of local lymph nodes. तो वहां पे क्या होता है, पेनलेस अल्सर्स बन जाते हैं इन द इनिशियल इन्फेक्शन. ओके, सो इनिशियल इन्फेक्शंस में पेनलेस अल्सर्स बन जाते हैं, धीरे धीरे ये लीजन्स का फॉर्म ले लेते हैं और वहां पे सोरिंग हो जाती है. सोरिंग मतलब थोड़ी स्वेलिंग आने लगती है. सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे जब ये स्टेज बढ़ती है तो वहां पे स्किन लीजन्स आने लगते हैं, जेनाइटल रीजन में स्किन लेजन्स होने लगते हैं. उसके बाद रैशेस होने लगते हैं, हेयर लॉस कैन हैपन, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्वोलन joints. Okay, and there can be flu-like conditions also. Flu-like conditions. इसके अलावा जब नेक्स्ट स्टेज आती है, सो दिस वाज द प्राइमरी स्टेज और द फर्स्ट स्टेज, पेनलेस अल्सर. सेकंड स्टेज में क्या हो गया, स्किन लेजन्स आने लगे, रैशेस आने लगे, हेयर लॉस होने लगा, स्वोलन जॉइंट्स होने लगे, फ्लू लाइक कंडीशन हो गई. अब जब नेक्स्ट स्टेज आ गई तो उसमें क्या होगा, उसमें क्रॉनिक अल्सर्स होने लगेंगे, क्रॉनिक अल्सर्स होने लगेंगे. ओके, और ये क्रॉनिक अल्सर्स कहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, दे विल बी अपीयर ऑन द फेस आल्सो. फेस में भी, नोज, लोअर लेग, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे. इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे, इट कैन ऑल्सो बी लीडिंग टू पैरालिसिस. पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि अब तक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, यहाँ कोई जो टर्शरी स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है. इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लाइंडनेस. इट कैन ऑल्सो लीड टू heart trouble, heart impairment. Okay, and the latent syphilis means एकदम last stage में क्या हो सकता है, it can even lead to death. Okay, so ये जो disease है syphilis, it is caused by Treponema pallidum. It is a venereal disease, or you can say it is a sexually transmitted disease which is marked by the painless ulcers. Then skin lesions. Skin lesions are very common symptoms of syphilis. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, पेनलेस अल्सर्स के बाद स्किन लेजन्स बनने लगते हैं, रैशेस बनने लगते हैं, और ये अल्सर्स प्रोमिनेंट रहते हैं जेनाइटल रीजन्स में. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डिजीज. इसका जो ट्रांसमिशन है सेम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ओके, ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, दैट इज पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन. नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो ट्रीटमेंट के लिए वी यूज एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड tetracycline. Okay, so this was about syphilis. Next is gonorrhea. The next disease is gonorrhea. Now gonorrhea, it is caused by the bacteria Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. What are the symptoms? The symptoms is, the first thing is the bacteria, it lives in the genital tubes. Genital tubes means all the ducts. Okay, so it lives in the genital tubes. There it start producing a pus. Okay, तो pus का discharge होने लगता है. So genital regions में क्या हो गया, inflammation हो गई. इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी यूरिनेशन के टाइम, क्योंकि जेनाइटल ट्यूब्स, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, वहीं पे इन्फेक्शन हो गया. तो क्या हो गया, जेनाइटल ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड. जेनाइटल ट्रैक्ट अगर इन्फेक्टेड है तो वहां पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पस का डिस्चार्ज हो रहा है. पस इज डिस्चार्ज्ड. ओके,
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैपेंस इज जब एक बार जेनाइटल ट्रैक में, जेनाइटल ऑर्गन में ये पस डिस्चार्ज होने लगती है तो वहां इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन के कॉजेस क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। बर्निंग सेंसेशन कब ज्यादा फील होगी? ड्यूरिंग यूरिनेशन। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। Next thing is at later stages it can also cause to arthritis. बाद में arthritis joint pain भी cause कर सकता है. It can also lead to eye infections also. Okay, so it can also lead to eye infections. It can be transmitted from mother to the child. Okay, so transmission sexual contact से है, mother से child में है. It can also be transmitted through using the same towel or common toilets, public toilets. इनमें भी हो सकता है by using the same clothes. Okay, अगर कोई clothing भी same use करता है तो उस केस में भी इसका transmission बहुत easily हो सकता है. Okay, so incubation period of this disease is 2 to 5 days. ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, वही पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन. ओके, सो दिस इज अबाउट गोनोरिया. गोनोरिया में नेसेरिया गोनोरे से डिजीज होती है. जेनाइटल ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड, पस डिस्चार्ज होने लगता है. इट इज पेनफुल and burning sensation होती है during urination. It can also lead to arthritis and eye infection. Next thing is treatment is by antibiotics like ampicillin and penicillin. Okay, so this is about the bacterial disorders. Next we'll move to infection by viruses. Viruses से जो infections होते हैं उसके बारे में. Now the most common here comes is AIDS. AIDS stands for, it is acquired immunodeficiency acquired syndrome. immunodeficiency syndrome. Now as the name suggests, इसके disease के होने पर the person will be deficient. Deficient of what? Immune system. Means his immune system will be impaired. उसका immune system ढंग से काम नहीं कर पाएगा. और वो कब हो रहा है? It is due to acquired. Okay, कहीं से acquire किया है उसने ये disease, ये syndrome, और उस disease का जो main जो सिम्टम है और मेन कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है कि डेफिशिएंट हो जाता है पर्सन इम्यून सिस्टम का. अगर इम्यून सिस्टम से डेफिशिएंट हो जाए तो व्हाट इज इम्यून सिस्टम डूइंग? इम्यून सिस्टम इज लाइक द आर्मी ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की आर्मी की तरह हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हर और बीमारी से. तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया, इम्पेयर हो गया, सो विल बी प्रोन टू अदर डिजीजेस ऑल्सो. तो एड्स का यही सबसे ज्यादा मेन रीजन है कि यहाँ पे हमारी बॉडी और डिजीजेस के भी प्रोन हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज वेरी वनरेबल टू ट्यूबरक्लोसिस. उसको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है. ओके, नाउ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस disease is virus, that is HIV. HIV stands for human immunodeficiency virus. So here also the name says कि ये वायरस क्या करता है? इम्यूनोडेफिशिएंसी कॉज करता है. सो इट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सो ये पूरे वायरस की जो लाइफ साइकिल है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं. सो हियर विल बी जस्ट डूइंग द ब्रश अप ऑफ द थिंग, दैट्स इट. डिटेल में हम करेंगे हेल्थ और डिजीज में. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय HIV वायरस. इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. पर्सन फील्स वेरी लेथार्जिक, ही फील्स वेट लॉस, नॉजिया, हेडेक, रैशेस, ये सब होने लगते हैं. एंड ही इज ऑल्सो प्रोन टू अदर इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस के भी प्रोन होने लगता है. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 महीने से 10 साल. मतलब कि अगर किसी की बॉडी, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर किसी की बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आ जाया है तो सिम्टम्स कब तक दिखाई देंगे? तो ये हो सकता है कि किसी की बॉडी में वायरस आज है, हो सकता है 10 साल बाद उसकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई दे. तो दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड. ट्रांसमिशन, इट कैन बी वाया ब्लड, इट कैन बी वाया सीमेन. ओके,
नेक्स्ट द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ यूज करते हैं AZT। ओके, AZT is used for treatment. AZT stands for azithromycin. Azithromycin is used for the treatment of HIV. Okay, so this is about AIDS, which is caused by HIV. Next thing is, next disease is hepatitis B. Okay, hepatitis B, it is caused by virus, hepatitis B virus. As the name says, hepatitis B. I've written the short form HBV. That is hepatitis B virus. Okay, now what are the symptoms? See, hepatitis, hepatic word or hepatic word is for liver. Itis means inflammation. So I can clearly say that in this disease, basically what happens is there is inflammation of the liver. Liver पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जब भी हेपेटाइटिस होगा या HBV का या HCV का इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? एक तो फटीग, नेक्स्ट थिंग इज जॉन्डिस। जॉन्डिस बहुत कॉमन है, स्किन येलो होने लगती है, फीवर आने लगता है, रैशेस आने लगते हैं। ओके, और एब्डोमिनल पेन होने लगता है बिकॉज लीवर इज इन्फेक्टेड हियर। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो लीड टू लीवर कैंसर। सो यहाँ पे हेपेटाइटिस में, किसी भी तरीके के हेपेटाइटिस में जो मेन ऑर्गन जो इफेक्टेड होता है दैट इज लीवर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा से भी हो सकता है। इवन टैटू जो लोग करवाते हैं, अगर वो सेम निडल्स यूज करते हैं टैटूइंग के लिए या नोज पियर्सिंग के लिए, इवन द पीपल हु शेयर्स देयर रेजर्स अगर कोई शेयर करता है या इवन टॉवल्स अगर कोई शेयर करता है, तो उस केस में भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, नाउ दिस डिजीज इट इज इनक्योरेबल, एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये क्या है, इनक्योरेबल डिजीज है। बट वैक्सीन्स दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट, अ न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत डिटेल में करेंगे हेल्थ और डिजीज चैप्टर में कि वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाना पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट डिजीज विल मूव ऑन इज genital herpes. Okay, now genital herpes, it is caused by the virus named herpes simplex virus. So it is caused by the virus named herpes simplex virus. Now what are the symptoms here is, the symptoms are, it is the main symptoms is lesion formation, lesions बनने लगते हैं यहाँ पे। अब lesions जो है उसमें पस भी भर सकती है। Okay, so there can be pus filled lesions also. वहाँ पे painful होने लगता है in case of like when the lesions they are formed in external genitalia, external genitalia पे या anal regions में अगर बनते हैं तो उस केस में it is very painful also, itching होने लगती है, it cause inflammation। अगर फीमेल्स में है इन्फेक्शन तो इट कैन ऑल्सो बी कॉज टू न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज इट ऑल्सो लीड्स टू फीवर, हेडेक, विजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी होने लगता है ज्यादा अमाउंट में। ओके, सो दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। व्हाट इज द सिम्टम्स? फर्स्ट इज लेजन्स। लेजन्स जो होते हैं दे आर क्लस्टर ऑफ लेजन्स दैट इज पेनफुल, दे कैन बी फिल्ड विद पस, पस से भर सकते हैं। Now these are present on genital regions and perianal regions, means around the anal regions. Next thing is transmission जो है वो आगे बेबी को भी हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी को भी हो सकता है। Other symptoms can be fever, headache, pain, itching. Itching is very common symptom here. It can other symptoms can be vaginal discharge.
ओके, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होने लगती है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? इट कैन बी ड्यू टू जेनाइटल secretions also. It can also be due to like the contact with the virus. Like अगर कोई कॉमन टॉयलेट्स यूज करता है, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करता है, उस केस में भी ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। क्लोथिंग शेयर करता है, टॉवल शेयरिंग करता है, तो उसमें भी ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट डिजीज इज genital warts. Okay, now genital warts, it is again a viral disorder. It is caused by HPV, human papilloma virus. Human papilloma virus. Okay, so genital warts is caused by human papilloma virus. Symptoms क्या होते हैं? वॉट्स दिखाई देने लगते हैं। वॉट्स मींस द स्किन लेजन, स्किन के सरफेस पे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर हार्ड आउटग्रोथ बनने लगती है। ओके, और ये जो ये जो वायरसेस है, दे कैन आल्सो एंटर इनटू दी, दे कैन आल्सो इन्फेक्ट दी वेजाइनल एंड द सर्विकल एरिया ऑफ द फीमेल। ओके, बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया और पेरिएनल रीजन्स पे डेवलप होते हैं सारे वॉट्स। सो व्हाट आर वॉट्स? दीज आर दी हार्ड आउटग्रोथ्स। हार्ड आउटग्रोथ्स बनने लगती हैं। They are present on the external genitalia and the perianal region. Next thing is transmission, sexual intercourse से हो सकता है with the person who is carrying this virus. Okay, so this is all about genital warts. Okay, so next is STDs caused by chlamydia. Now, the disease which we'll be studying here is chlamydiasis. So chlamydiasis is a disease caused by chlamydia. Now, what is the pathogen name? The name of the pathogen is Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis is a causative agent of chlamydiasis. Now, there are certain different types of strains of this chlamydia which causes this disease. Next thing is, यहाँ पे जो symptoms हैं, what are the symptoms? Symptoms is generally inflammation. Inflammation symptom है, intracellular है, सेल के अंदर सर्वाइव करता है, पैथोजन है, पैरासाइट है, और जिस भी एरिया के सेल्स में रहता है वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। सो व्हाट आर द इन्फ्लेमेशन एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन केस ऑफ मेल्स, मेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इट कैन बी इन यूरेथ्रा, ओके, it can be in epididymis, it can be in scrotal sac. तो इन सारे रीजन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नाउ इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इट इज पेनफुल, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा वहां उन रीजन्स में, सो दैट इज इन्फ्लेमेशन। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स के केस में क्या होगा? उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इवन इन्फ्लेमेशन कैन आल्सो अकर इन रेक्टल एरियाज। ओके, रेक्टम में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेमेशन हियर मींस? अगेन दैट इज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस, तो ये सारे क्या है? इन्फ्लेमेशन के पार्ट्स। नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसमिशन, इट कैन बी बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पार्टनर। इंक्यूबेशन पीरियड जनरली 1 वीक का होता है। नेक्स्ट थिंग इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए वी यूज एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, rifampicin. So these are some of the antibiotics which are used here. Penicillin is not effective in case of chlamydiasis. Okay, so chlamydiasis cannot be cured by penicillin. It is generally tetracycline, erythromycin, rifampicin which are used for treating the chlamydiasis. Okay, next moving on, the disease caused by
प्रोटोजोआ. सो प्रोटोजोआ से जो डिजीज होती है, द डिजीज which we'll be studying here is trichomoniasis. It is caused by, very important, class 11th में भी था, it is caused by Trichomonas vaginalis. It is caused by Trichomonas vaginalis infection. See, generally people think कि vaginalis नाम दिया है, so it is causative agent just in case of females. No, it infects both males and females. Okay, infects both males and females. Females के अंदर obviously जब हम वेजाइनलिस का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ इन्फ्लेमेशन बेसिकली कहाँ होगी, वेजाइना में होगी. इन केस ऑफ फीमेल्स इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड इन वेजाइना. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इन्फ्लेमेशन, इट लीड्स टू फाउल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होने लगेगा, येलो कलर का डिस्चार्ज होने लगेगा, बर्निंग सेंसेशन होगी इन केस ऑफ वेजाइना. In case of males, what happens is, again inflammation will be there in urethra, in epididymis, and even prostate gland. तो इन सारे regions में क्या होगी, inflammation होगी, pain होगा, burning sensation होगी. Transmission sexual act से होता है. Next thing is treatment. Treatment के लिए we used certain drugs like treatment is by drug like metronidazole. Okay. At the same time, even the partners who doesn't show the symptoms, even they can be treated with this drug to prevent the infection. Okay. Next disease which we'll be doing is by fungi. Now one disease which we'll be studying which is caused by fungi is candidiasis. It is caused by Candida albicans. Positive agent is Candida albicans. It is also called as vaginal yeast. Now this yeast is basically normally can be found in mouth, colon regions and vagina regions. Okay, so through oral route also it can be infected. Now what happens in these kind of infections is there is inflammation in vagina. Now what happens in this kind of inflammation is there is thick discharge from the vagina. Fluid discharge will be there and it will be very painful. Okay, in case of men, the infection can be developed with the infected women. Okay, so if a man comes in sexual contact with the infected women, the inflammation can be caused in urethra. So in case of men, inflammation is in urethra. Now transmission कैसे होता है, sexual act से ही होता है, and treatment can be by certain antibiotics like miconazole, clotrimazole. Okay, so these are some of the diseases which are sexually transmitted. They are transmitted with the sexual act between the infected person and the healthy person. It can also be transmitted by using the syringes. It can also be transmitted by the infected needles which are used in case of tattooing. Okay, they can also be transmitted from infected mother to the child. So now we'll study it from NCERT. So diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are called as sexually transmitted disease, venereal disease, or reproductive tract infections. Some of the examples are gonorrhea, syphilis,
genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV, the most common, which we'll be doing in detail in health and disease. Now, the infections like hepatitis B, HIV are also caused by sharing of needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood, and from infected mother to the fetus. Next thing is, except for hepatitis B, genital herpes, and HIV infection, all other are completely curable if they are detected in early stages. Next thing is, the common symptoms are itching, fluid discharge, pain, swelling in the genital regions. Females can be often asymptomatic. Asymptomatic means symptoms are not seen for the long time in case of females, though they have the infection. Okay. Now, absence or less significant symptoms are present in early stages, which is related to the social stigma कि यहाँ पे timely detection नहीं हो रहा है इस तो ये क्या करते हैं जैसे ऐसा कुछ symptom दिखने लगता है they don't go to doctor, they don't go for कंसल्टेशन नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से वो डिजीज बाद में बढ़ती जाती है एंड द ट्रीटमेंट इज नॉट प्रॉपरली डन ओके इट कैन आल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक अगर डिलेड ट्रीटमेंट हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं pelvic inflammatory disorders हो सकते हैं abortion stillbirth ectopic pregnancy infertility and even cancer okay so these diseases are basically threat to the healthy society because क्योंकि since a social stigma is attached to such diseases कि भाई ये तो किसी sexual act की वजह से हुआ है so people doesn't consult the doctors even they don't go to the doctors they doesn't refer them okay now prevention and early detection is very important here there are certain awareness programs which are done by the government next thing is this is the incidences are very common in case of 15 to 24 years of age group but the thing is there is no any reason specific reason to panic calmly these diseases are curable now prevention methods are avoiding sex with the unknown partners using condom during coitus in case if there is any symptom seen refer to the qualified doctor okay so proper diagnosis and treatment is necessary and continued treatment is necessary till the doctor says